Conchem classes means concept of chemistry classes. Subscribe my channel and press bell icon for latest videos. तो बच्चों, आपने वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ा और लास्ट वीडियो में मैंने वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में और कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन के बारे में बताया। अब एक नया टॉपिक हम चाहते हैं आपको बताना। उससे पहले हमारे पास कुछ सवाल हैं। उस सवाल का आंसर वैलेंस बॉन्ड थियरी से भी हमें नहीं मिल पाया, तो यानी एक नई थियरी की ज़रूरत है। तो सवाल क्या है, पहले ये सुनिएगा। सवाल है, इन चारों स्पीसीज में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? O2, O2 plus, O2 minus and O2 2 minus. Which one is most stable? The second question is, which one has highest bond dissociation enthalpy? Which one has highest bond dissociation enthalpy? Some other questions are also there. The question is, which one out of following is paramagnetic? Paramagnetic. Then N2, then Cl2, then O2, and fourth one is H2. Which one is paramagnetic? We can experimentally find out nowadays. We can experimentally find out which substance is paramagnetic by the doing experiment. But what is the explanation for that? Why this particular species is paramagnetic? And many more questions are there. What is the bond order between? What is the stability? Which one is more stable? Which one is less stable? These are questions we could not answer on the basis of valence bond theory and hybridization concept. So there is a requirement of a new theory called molecular orbital theory. So our new topic is molecular orbital theory. Molecular orbital theory was put forward by Hund and Mulliken in 1932. बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करें। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि नहीं अनडेल्ट रह गया है तो उसके लिए भी आप बताएं कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। इस क्वेश्चन का आंसर जब ये थियरी पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले इसके सैलिएंट फीचर जान लेते हैं। अगर आप मुख्य बातें नहीं जानेंगे थियरी की तो आप थियरी को समझ नहीं पाएंगे। तो इसके सैलिएंट फीचर ये रहे। The salient features of MOT are as follows. In molecules, electrons are present in new orbitals called molecular orbitals. Molecular orbitals, like atomic orbitals, are characterized by a set of quantum numbers. Molecular orbitals are formed by combination of atomic orbitals of nearly same energies and proper symmetry. Molecular orbitals are not associated with any particular atom but belong to the nuclei of all atoms constituting the molecule. So the nuclei of different atom in the molecule behaves as a polycentric, but atomic orbital is monocentric. The number of molecular orbital formed is equal to number of atomic orbital undergoing combination. Half of the new molecular orbital have lower energy than the combining orbital and are called bonding orbital. Half of the new orbitals have energy greater than the combining orbitals and are called anti-bonding orbitals. The shapes
of the molecular orbital depend upon the shapes of combining atomic orbitals. The molecular orbitals are filled in the increasing order of their energies, starting with the orbital of least energy. This is according to Abbar rule. A molecular orbital like atomic orbital can accommodate only 2 electrons, and these electrons must have opposite spin. This is Pauli exclusion principle. While filling degenerate molecular orbitals means molecular orbitals of equal energy, pairing of electrons does not take place until all such orbitals are singly occupied. Means filling of electron in molecular orbital is according to हुंड्स रूल। तो सैलिएंट फीचर के जो 8 सैलिएंट फीचर आपने जाना, उसके बाद आपको जानना है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म क्यों होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से तो कैसा कॉम्बिनेशन होता है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया गया, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं था, वो मॉलिक्यूल के लिए नहीं था, दैट इज फॉर एटम। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, उसको सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन उसको एक तरह से अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सॉल्व किया जाए तो उसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये मानते हैं कि यह कॉम्बिनेशन का तरीका है। जैसा आपने सैलिएंट फीचर में पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लीजिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक है, सपोज इट्स अ 1s, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज द अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो 1s। आपने सैलिएंट फीचर में पढ़ा भी है कि सिमिलर टाइप के, सिमिलर सिमेट्री के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, और जितने ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। तो ये जो है 1s ऑर्बिटल है, इसके लिए अगर हम कहें कि यह ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन है तो इसका वेव फंक्शन होगा। ये एटम A है, ये एटम B है, इसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा, साई B होगा, दैट इज द वेव फंक्शन। अगर उस वेव को हम ड्रा करें तो ऐसे ड्रा करेंगे, ट्रफ क्रेस्ट, एक को आर्बिट्रेरली हम प्लस साइन, दूसरे को माइनस साइन, जो क्रेस्ट है उसको हम प्लस साइन दे रहे हैं, और जो क्रेस्ट है उसको प्लस साइन, और जो ट्रफ है उसको माइनस साइन दे रहे हैं। ये दैट वेव इज द वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। दिस अनदर वेव, दिस इज द अनदर वेव, this is the psi A and this is the psi B. This psi A and psi B is the wave function of this atomic orbital 1s and atomic orbital 1s of another hydrogen. So these two are wave function of the electron present in the 1s subshell, 1s orbital. There is a two type of interference. This wave, this is the wave, electron is a wave, then they interfere each other like light wave. There is a two type of interference. The wave which is in the plane, ये जो वेव है और ये दो वेव है वो एक ही सेम फेज में पड़ रहे हैं, सेम प्लेन में पड़ रहे हैं। तो अगर ये एक दूसरे को इंटरफियर करें तो जो रिजल्टिंग वेव होगा वो होगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। सेम प्लेन में अगर इसके क्रेस्ट, देखिए इसका क्रेस्ट जो है उसी प्लेन में पड़ रहा है, सेम प्लेन में अगर क्रेस्ट पड़ रहे हैं और अपोजिट प्लेन में अगर पड़ते हैं तो वो एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट होते हैं। और इस तरह का अगर
इन द प्लेन जो टफ क्रेस्ट पड़ रहा है, इसमें जो एम्पलीट्यूड है, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड है ए, इसका एम्पलीट्यूड है बी, तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए प्लस बी। दिस इज द इंटरफेरेंस ऑफ वेव। सिमिलरली दिस वेव and this wave also interfere each other and there is a constructive interference and in constructive interference the resultant psi, that is bonding, that is called bonding, is equal to psi A plus psi B. Okay. If you are drawing this type of figure, then if there is a constructive interference, the resulting molecular orbital, as you know that in molecule there is a molecular orbital. This atomic orbital is not present in the molecule. The atomic orbital combine, that is a LCAO, linear combination of atomic orbital. This combining by this method and changes into molecular orbital. This is the molecular orbital. This is the nucleus and the electron density mainly lying between these two nucleus. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही सबसे ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होने का मतलब है उसको स्टेबल बनाएगा मॉलिक्यूल को, और इसको कहते हैं द रिजल्टिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये होगा सम ऑफ आर, दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सम ऑफ साई ए एंड साई बी। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको कहेंगे सिग्मा 1s। सिग्मा 1s मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और साई बी क्या है, दैट इज द वेव फंक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई अगर एटॉमिक ऑर्बिटल जितने कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो पहले तो हमने कहा दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, एक और बनेगा, लेकिन उसको हम वेव से रिप्रेजेंट करें तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल का जो वेव है वो ये है वेव फंक्शन, और दूसरे वाले का ये वेव फंक्शन है। दोनों इन द प्लेन पड़ रहे हैं, इसलिए एक दूसरे से इसको कहेंगे एडिशन होगा, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या एडिशन ओवरलैपिंग कहेंगे। इसको भी लिख देते हैं, दैट इज एडिशन ओवरलैपिंग, एडिशन ओवरलैपिंग, ठीक है, या उसी को हम वेव के टर्म में कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा ही इंटरफेरेंस लाइट वेव में भी होता है। एक वेव दूसरे वेव के इन द प्लेन अगर हो गई तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आउट ऑफ द प्लेन हो एक दूसरे के तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ऑर्बिटल बन गया, यानी 1s के कॉम्बिनेशन से या एडिशन ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, जिसका टोटल वेव फंक्शन था साई ए प्लस साई बी। दिस फिगर शोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1s orbital. This 2 1s orbital combine to form 2 molecular orbital. First is sigma 1s, that is bonding molecular orbital. Another is sigma star 1s, that is anti-bonding molecular orbital. तो अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं। ये एक वेव है, ये दूसरा सेकेंड वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव। ये ए मॉलिक्यूल है, सॉरी ए एटम है, ये बी एटम है हाइड्रोजन का। दिस इज द एटम ऑफ हाइड्रोजन। सी, तो यहां पे देखिए ये सेम प्लेन में इनका क्रेस्ट नहीं है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो आर्बिट्रेरली हमने किया है, जो ऊपर में है उसको पॉजिटिव साइन दिया है। ये जो है सेम प्लेन में नहीं है, ठीक है, ये क्रेस्ट इसका है, उसी प्लेन में इसका ट्रफ है, और इस तरह का इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस कहलाएगा। और इस तरह की ओवरलैपिंग, पहले वाले को सब्सट्रैक्टिव एडिशन ओवरलैप, इसको सब्सट्रैक्शन ओवरलैप कहेंगे, सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टिंग वेव होगा वो डिमिनिश हो जाएगा, या हम इसका एम्पलीट्यूड है ए, सपोज कर लीजिए, इसका एम्पलीट्यूड है मान लीजिए बी, एम्पलीट्यूड ए, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड होगा ए माइनस बी या बी माइनस ए, वटेवर। यानी ये जो एम्पलीट्यूड है वो घट गया, और जो रिजल्टिंग वेव है वो इन दोनों वेव के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हो पाया जाता है। और ऐसा लाइट में भी मिलता है, इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है, तो इसमें भी यानी इन ऑर्बिटल के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से या सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग से, इसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, साई ए माइनस साई बी। तो इससे बनेगा एंटी बॉन्डिंग ए बी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो भी जान लें। दो न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली जो है न्यूक्लियाई से दूर होगा। दिस इज द प्लस, दिस इज माइनस। इन द बॉन्डिंग everywhere positive. So this is the anti bonding molecular orbital MO, ABMO, and symbolized as sigma 1s star or sigma star 1s. So this is the one representation that there is a destructive interference between these two waves, and the resultant wave is diminished than the interfering wave. Here what I am representing, this 1s and 1s orbital do the subtraction overlapping and form anti-bonding molecular orbital. In the anti-bonding, the AB anti-bonding, the psi or wave function of the anti-bonding orbital is equal to psi A minus psi B. This representing the destructive interference or subtraction overlapping. तो अभी तक आपने ये समझा कि ये LCO क्या चीज़ है। LCO जिसका फुल फॉर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर के ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये कॉम्बिनेशन कैसा होता है मैंने बताया आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। This figure showing interference of the wave. As you know that wave interfere each other. There are two types of interference. One is constructive interference and second one is destructive interference. In the figure, the first interference is constructive and second one is destructive. In constructive interference, one wave A, another wave B interfere each other, and this is constructive interference. The resultant wave has longer in amplitude, higher amplitude than the previous waves which are interfering. In the second figure, the wave doing the destructive interference and the amplitude are subtracted, means the resultant wave we will get have less amplitude in compared to the wave are interfering each other. तो एक और पॉइंट था इसके सेलेंट फीचर में कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही फॉर्म होते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। तो हमने देखा कि दो कंबाइन किए और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। मैं उसको डायग्राम के रूप में बनाता हूं। यहाँ पे ये है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, AO लिख रहा हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए लिख रहा हूं। ये है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ these two are atomic orbital of hydrogen atom. There are two hydrogen atom.
there is a constructive interference. Let's represent by another color. These two atomic orbital, these belongs to the atomic orbital. These two belong to atomic orbital. These are same energy and same symmetry. There is a lowering in energy when these atomic orbital combine to form molecular orbital. So this is the molecular orbital, less in energy than the atomic orbital. See, this is the energy, increasing energy level. And suppose if I draw the structure of the molecular orbital, this is MO, molecular orbital. There is a 2 nucleus and electron density lie between 2 nucleus. This is the structure of diagram of the bonding orbital, and represented by this is the sigma 1s, and one is anti-bonding orbital form, and this anti-bonding orbital is sigma star 1s. Means this 1s is atomic orbital of hydrogen, these two 1s are atomic orbital, and these two are molecular orbital of H2 molecule. So in atom of hydrogen there is 1s, 1 electron, there is a 1 electron in the 1s of hydrogen. Okay, another hydrogen atom contains 1 electron in its 1s orbital. There is but in H2 there is a 2 molecular orbital. First is sigma 1s and another is sigma star 1s. This atomic orbital not present in the molecular orbital. This molecular orbital represented by sigma and pi sign. Sigma means that involved in the sigma bonding. So this 2 orbital belong to the molecule hydrogen. This orbital 1s1 belong to the atoms. This atomic orbital not present in the molecular orbital. This atomic orbital linearly combined and form molecular orbital. There is a 2 atomic orbital. There is a formation of 2 molecular orbital. This is lower in energy. This is higher energy. If we compare first of all we draw the diagram. This is the nucleus and this is the diagram of the sigma 1s orbital. Means electron mainly present in this area. Electron mainly present in this area. Here electron present lie in this area. Mainly electron present in this area. Okay. So this is sigma star 1s. This 1s of atomic hydrogen contains 1 electron as we see here. This 1s also contain 1 electron. Then in molecular orbital, the lower energy, as you studied in the salient feature, the lower energy molecular orbital filled first and then higher energy molecular orbital according to the Abbar rule. Abbar rule also apply in the molecule as in the atom. So these two electron means electron present in the atom present in the bonding molecular orbital, and we can write here 2. There is a 2 electron present in sigma 1s. So if anybody ask you that what is the molecular energy level diagram for hydrogen molecule, so you can say for H2 there is a 2 electron in sigma 1s. All electrons are bonding electron, no any anti-bonding electron is present. Let's calculate the bond order.
I'm introducing one new word, that is bond order. Number of bond between the two atoms, that is called bond order. Bond order. Bond order is equal to number of bonding electron minus number of anti-bonding electron divided by 2. So number of bonding electron, this is 2 electron, that is bonding. Number of anti-bonding electron, there is a no electron, so minus 0 divided by 2. This is 2 divided by 2, and there is a 1 bond between the hydrogen and hydrogen, and that is sigma bond. So this is the case of hydrogen. In hydrogen there is a 2 electron, and all the 2 electron present in the bonding molecular orbital of H2 molecule. If you see the molecular orbital diagram of hydrogen molecule, in hydrogen atom there is a 1 electron in its 1s orbital or subshell. So both the hydrogen contains 1 electron in the 1s orbital. These orbitals are atomic orbital of hydrogen atoms. These atomic orbital combine to form molecular orbital. There are 2 molecular orbital formed by combining of atomic orbital. First is bonding molecular orbital represented by sigma 1s. Another is anti-bonding molecular orbital represented by sigma star 1s. These 2 molecular orbital, whether it is bonding or anti-bonding, that belongs to H2 molecule, that does not belong to the atom, that belongs to the hydrogen molecule. And in H2 there are 2 electron, both electron present in sigma 1s, that is bonding molecular orbital. And if we calculate the bond order, that is number of bonding electron minus number of anti-bonding divided by 2. So there is a 2 electron in the bonding orbital. No, anti-bonding orbital does not contain any electron, so the bond order is 1. Means there is a single bond between hydrogen in the hydrogen molecule. So the electronic configuration of hydrogen molecule is sigma 1s2. Hence the hydrogen molecule contains single covalent bond. One thing I want to also mention here, this bonding, this is the wave function for bonding molecular orbital, that is equal to wave function of one atom and wave function of another atom. This is the constructive interference or addition overlapping. The anti-bonding wave function, the wave function bar for the anti-bonding molecular orbital can be represented by psi A minus psi B. Suppose we want to know the electron density of the bonding orbital, that is psi B square, that is equal to psi A plus psi B का whole square, that is equal to psi A square plus psi B square plus 2 psi A psi B. This is the electron density or probability density wave function or probability density of electron in the bonding molecular orbital. For anti-bonding, this is psi A square, psi A minus psi B का whole square, that is equal to psi A square plus psi B square minus 2 psi A psi B. इससे हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप इसको भी समझ लें. जो psi B स्क्वायर है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है. और बॉन्डिंग के लिए जो वैल्यू ज़्यादा होता है, एंटी बॉन्डिंग के लिए कम होता है. बॉन्डिंग के लिए कितना ज़्यादा होता है, इतना ऐड हुआ है 2 psi A psi B. और एंटी बॉन्डिंग के लिए जो वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो
इतना कम होता है, -2 psi a psi b। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर बिटवीन द न्यूक्लियस। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मान लीजिए 1s कंबाइन कर रहे हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने और एंटी बॉन्डिंग दिस इज 1s सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। अगर एनर्जी को हम कंपेयर करें, जैसे पहले भी बताया मैंने, तो इसकी एनर्जी कम है, दिस 1s हैज़ लेस एनर्जी, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। और अगर एटॉमिक एनर्जी से कंपेयर करें और यह A है, डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस एटॉमिक एनर्जी से इतना ज़्यादा, A ज़्यादा है और ये B कम है, तो A इज ग्रेटर देन B। यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने से जितना ये एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी का या स्टेबल हो जाता है, कम एनर्जी का हो जाता है या स्टेबल हो जाता है, उससे ज़्यादा ये डिस्टेबलाइज करता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में रहे 1 या 2 तो वो उसको स्टेबलाइज करता है, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो जाए तो वो उसको डिस्टेबलाइज करता है। YHE2 डज नॉट एग्जिस्ट। He2 या H2 प्लस पहले ले लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल? 2 इलेक्ट्रॉन H2 में थे, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो हाइड्रोजन का ये 1s है, ये हाइड्रोजन का 1s है। ये दोनों s हाइड्रोजन एटम के हैं या मॉलिक्यूल के हैं? ये दोनों एटम हाइड्रोजन एटम के हैं या मॉलिक्यूल के हैं? ये दोनों एटम जो है वो हाइड्रोजन एटम के हैं। ये दोनों ऑर्बिटल, और अगर ये कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को सिग्मा 1s कह रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार 1s कह रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, AO लिख रहा हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये AO है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और ये दोनों जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं H2 के। ये हम पढ़ चुके हैं। क्या नया पढ़ना है इसमें? भाई अगर H2 ना होकर के H2 प्लस हो तो क्या होगा? तो H2 प्लस में एक हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों कहाँ? दोनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है नहीं, एक ही में है। दोनों में से किस जो इलेक्ट्रॉन है एक, वो कहाँ जाएगा? जो लोअर एनर्जी में पहले जाएगा, अकॉर्डिंग टू आप बारूल। हमने सेलेंट फीचर में बात की ही कि इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सो ऑन। तो अब कॉन्फ़िगरेशन हम कहें H2 का, तो हम कहेंगे सिग्मा 1s1 एंड सिग्मा स्टार 1s0। ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। लेट्स कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। See, there is a one bonding electron, that is this one. There is a no anti-bonding electron, that is 0. That is 0 divided by 2, and that is half. Means there is a half bond between hydrogen and hydrogen in H2 plus. That is not complete bond. That is not one bond. That is not zero bond in HH atom in H2 plus. So there is a half bond. तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया हाफ, मीन्स इसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी अप्रॉक्स 436 किलो जूल पर मोल होता है, तो काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड है। ये बॉन्ड एंथैल्पी जो है इससे ये कम होगा। तो यानी हमने एक चीज़ देखा कि बॉन्ड ऑर्डर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंथैल्पी के। जितना ही ज़्यादा बॉन्ड, उतना ही ज़्यादा तोड़ने में आपको एनर्जी लगेगी। ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड, ग्रेटर द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी। सो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से कम हाफ बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी इसकी कम होगी, और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि बॉन्ड एंथैल्पी इसकी कम है
Okay. He2. Whether this molecule is possible or not, let's talk about the He. He have 2 electrons, 1s2 and 2s. There is no electron in the 2s. So another He contains 2 electrons, all these 2 electrons in the 1s orbital. So there is 2 electron in the atomic orbital of He. देखिए ये जो किनारे लिखा हुआ है दीज, ये वाले, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। इन्हीं के मिलने से ये 2 ऑर्बिटल बने हैं। ये 2 ऑर्बिटल बने हैं कौन कौन से? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s की एनर्जी इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम, इसलिए नीचे बनाया गया है, और इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जितना इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आएगा, जितना स्टेबलाइज होगा या उससे ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा अगर इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्लेस होता है। तो ये तो हाइड्रोजन केस के लिए बनाया था। लेट्स टॉक अबाउट द He2। He2 में देखिए क्या हो रहा है भाई, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 तो कम से कम, एक ऑर्बिटल है। अच्छा ये भी जान लीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो यह भी आपने सेलेंट फीचर में देखा है। देयर इज ए 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आपके भरेंगे। अब आप कहोगे इसमें तो भरा ही है। नहीं भाई, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये चारों इलेक्ट्रॉन पहले ये था, अब ये दोनों हैं। ये कम एनर्जी का या ज़्यादा एनर्जी का? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 2 बॉन्डिंग में। तो He2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें, मॉलिक्यूलर लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज 2, एंटी बॉन्डिंग दैट इज आल्सो 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। सो 0 is the bond order. So there is a no bond between He and He. Between this He and He has no bond. Either it half bond, 1/3 bond, whatever the things is. So He and He is not possible. The bond between He and He is not possible means the number of bonding electrons is equal to number of the anti-bonding electrons. So टिल 1993 तक हम यही जानते थे कि He के बीच में बॉन्ड नहीं होता है, और जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 1932 में दिया गया वो सही है। लेकिन 1993 में ये पाया गया कि हीलियम और हीलियम के बीच में बहुत कम बॉन्ड होता है, दैट इज 0.1 किलो जूल पर मोल। और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड इंथैल्पी आप जानते हैं 436 किलो जूल पर मोल अप्रॉक्स। देखिए इनके बीच बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी 0.0। ये 1993 तक तो भाई सही था कि He2 नहीं पॉसिबल है, लेकिन 1993 में एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि He जुड़ता है, लेकिन बहुत कम उसके बीच बॉन्ड इंथैल्पी होता है या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होता है, जबकि हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब He डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन पहले तो ये मानते थे कि He और He जुड़ते ही नहीं हैं। तो अब बात करते हैं He2 पॉसिबल क्यों नहीं है। तो आप कहेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 0 है। देयर इज अ नो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन He एंड He एटम इन, so hence He2 is not possible. Why? The number of bonding electron is equal to number of anti-bonding electron. If these two are equal, then what happen? This stabilizes the molecule and this destabilizes the molecule. As I told earlier, the destabilization is more than the stabilization. Hence, the bond between He and He is not possible. तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया होगा, वाई He2 इज नॉट पॉसिबल। अब कुछ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं
जो फॉर्म होते हैं, अगर ये एक लोब है p ऑर्बिटल का, ये न्यूक्लियस है, ये दूसरा लोब है, एक को मैं प्लस साइन से एक को माइनस साइन से, और ये प्लस साइन क्या बता रहा है, एक p ऑर्बिटल और दूसरे p ऑर्बिटल के बीच प्लस साइन अगर है, अगर प्लस साइन है तो ये बता रहा है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या एडिशन ओवरलैपिंग है। ये हो गया, दूसरा है प्लस इसका भी माइनस इसका भी। जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये रहा दोनों न्यूक्लियाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली इन न्यूक्लियाई के बीच में लाई करेगा, ये हो गया प्लस, और आउटसाइड द न्यूक्लियाई बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो ये pz है, यह pz है, अगर ये 2pz है, ये भी 2pz है, तो ये होगा सिग्मा 2pz। भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी वैसे ही असाइन करते हैं उन्हीं सेट ऑफ क्वांटम नंबर से जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को करते हैं। उनका भी केवल सिग्मा इसलिए यहां लगा हुआ है कि यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर तो ये रहा सिग्मा 2pz का फॉर्मेशन, तो एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, उसको भी देख लेते हैं। ये एक p ऑर्बिटल है, pz ही है, यहां पे माइनस साइन अब लगा रहे हैं, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या ओवरलैपिंग के टर्म में कहें हम उसको सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग हो रहा है। एंटी बॉन्डिंग जो बनेगा, ये दोनों न्यूक्लियाई बनाया हमने, यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक प्लेन है, ये नोडल प्लेन है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, और न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, न्यूक्लियाई के बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो इसको अनस्टेबल बनाता है। इसलिए इसको जो हम नाम दे रहे हैं सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग है, सिग्मा क्यों लगा है, ये सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग उसका सिग्मा बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। In this figure, this is showing the formation of two molecular orbital. One is bonding, another is anti-bonding. This 2pz orbital combine to form two molecular orbital. One is bonding, another is anti-bonding. The bonding molecular orbital is sigma 2pz and anti-bonding molecular orbital is sigma star 2pz. The energy of sigma 2pz is less than the sigma star 2pz, means sigma 2pz is stable. 2s और 2s ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करते हैं तो कैसा बॉन्डिंग बनेगा और कैसा एंटी बॉन्डिंग। देखिए ये है 2s, ये दूसरा 2s है, सेम साइज का है, सिमेट्री सेम है भाई, ओके। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बॉन्डिंग बनेगा। ओ ये तो ऐसे ही बना जैसा, थोड़ा साइज अलग होगा उससे। सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज सिग्मा 2s। और अगर एंटी बॉन्डिंग अगर बनेगा, माइनस साइन यहां लगेगा, ओके। यहां पे एक प्लेन होगा, इसको नोडल प्लेन बोलेंगे, वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं होगा, नोडल प्लेन। और ये दोनों न्यूक्लियस है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा ऐसा होगा, प्रेजेंट होगा। इसको कहेंगे सिग्मा स्टार 2s। ये वैसे ही है जैसे 1s ओवरलैप करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं,
अगर ये एटम ए का, ये एटम बी का ऑर्बिटल है, इसके लिए वेव फंक्शन साई है, इसके लिए वेव फंक्शन साई बी है, तो ये बॉन्डिंग का रिजल्टेंट वेव फंक्शन होगा साई ए प्लस साई बी। तो ऐसे ही है जैसे 1s कंबाइन कर रहा है, तो 1s कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, दो की होगा सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। उसी तरह 2s और 2s आल्सो combine and form bonding sigma 2s and sigma star 2s, and the bonding anti-bonding wave function for the anti-bonding molecular orbital is psi a minus psi b। ओके, अब हम बात करते हैं अगर px कंबाइन करेगा तो कैसे कंबाइन करेगा। सपोज के लिए मॉलिक्यूलर एक्सिस पे तो होता नहीं है, ये उसके परपेंडिकुलर होता है, ये प्लस ये माइनस, ये px है सपोज कर लीजिए। ये प्लस साइन क्यों लगाया? क्योंकि दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या एडिशन ओवरलैपिंग हो रहा है। इससे होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो मेनली न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे लाई करेगा, और इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और इसे हम कहेंगे ये 2px है, ये 2px है, तो ये बनेगा सिग्मा 2px, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह अगर यहाँ माइनस एस क्यों साइन लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ये 2px और 2px, और ये दोनों न्यूक्लियाई है, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो यहाँ, ये दोनों न्यूक्लियाई है, प्लस माइनस, थोड़ा नज़दीक बना लेते हैं, माइनस प्लस। यहाँ पे भी एक प्लेन है जहाँ प्रोबेबिलिटी पाए जाने की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है, या नोडल प्लेन कहलाएगा, और यह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार, सॉरी दिस इज नॉट सिग्मा, दिस पाई। भाई अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस जो ऑर्बिटल होंगे उनमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, यहाँ जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, इससे पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ भी जैसा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो जुड़ते हैं और सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी इस्तेमाल किया गया, दैट इज पाई स्टार 2px। तो अब आप पी वाई और पी वाई जब कंबाइन करेंगे तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कौन से बनेंगे आप ड्रा करके देखिएगा, और आप ड्रा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक हिंट देता हूं, इसमें पी एक्स और पी वाई में दोनों में ही पाई बॉन्ड बनेंगे। अगर पी एक्स लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का तो उसमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उससे पाई बॉन्ड बनता है। In this figure, the atomic orbital, that is px and px, are py and py. These combine to form two molecular orbital. One is bonding, another is anti-bonding. In the lower figure, the 2px and 2px combine to form anti-bonding, and in the above there is 2px and 2px combined to form pi 2px, that is bonding molecular orbital. Bonding is more stable than anti-bonding molecular orbital. अगर एनर्जी के टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाए, एनर्जी के टर्म में, तो हम कहेंगे तीन पी ऑर्बिटल होते हैं। सपोज कर लीजिए ये 2p ऑर्बिटल है, ये है pz है, ये px है, ये py है। इस तरह ये pz है, ये px है, ये py है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोअरिंग होगा अलोंग, भाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे लोअर एनर्जी का होगा
सिग्मा 2pz, इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और उससे ज़्यादा एनर्जी का होगा पाई, और दो ऑर्बिटल px और py, px और py दोनों ही पाई बॉन्ड बनाएंगे और उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगी। तो हम इसको लिख रहे हैं पाई 2px। ये कैसे बना है? इस px और इस px के एडिशन ओवरलैपिंग से बना है, और py के एडिशन ओवरलैपिंग से क्या बना? पाई 2py, और ये दोनों डिजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, 2p है तो पाई 2py। ठीक है, अब एनर्जी जो है ज्यादा होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से इसके एंटी बॉन्डिंग का। तो ये कौन से दोनों भाई, जितना जो एनर्जी में लोअर डाउन जाएगा उससे उसी के आसपास उससे थोड़ा ज़्यादा ही वो एनर्जी में हायर जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एंटी बॉन्डिंग है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ठीक है, अब कौन सा बच गया भाई? तीन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तीन एटॉमिक, ये दोनों, ये AO है 2p, ये भी है, ये AO है, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5, यानी 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 5 बने। तो एक और बनेगा, इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा, जितना ये लोअर है उससे ज़्यादा ये हायर होगा एनर्जी में एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में। ये होगा सिग्मा स्टार 2pz। तो अगर 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है सपोज कर लीजिए, या 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 और 4, इसमें भी 1 2 3 और 4, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? सबसे पहले सिग्मा 2pz भरेगा, कितना? 1 भरेगा, फिर 2 भरेगा, फिर इसमें सिंगली ऑक्युपाइड होंगे अकॉर्डिंग टू होम्स रूल। अगर 2 डिजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी बराबर है, उसमें पहले सिंगली ऑक्युपाइड होंगे, फिर पेयरिंग होगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, सभी बॉन्डिंग में भरे, जिसमें ये 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए है, ये दोनों पाई बॉन्ड बनाने के लिए है। तो ये तो रहा कहानी। p में इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उससे कौन कौन से मॉलिक्यूलर। ओके, अब कुछ और बातें, जैसे मैंने आपको पूछा था शुरू में ही कि O2 प्लस O2 माइनस में सबसे स्टेबल कौन है? सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी किसकी है? सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इन सवालों का जवाब हम कैसे ढूंढेंगे? तो ऑक्सीजन, अगर हम O2 की बात करें तो O2 के पास 1s2 2s2 2p4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होता है, ऑक्सीजन के पास, और 2 ऑक्सीजन है तो इसके पास भी 1s2 2s2 2p4। अब ऑर्बिटल जरा देख लें, एक एटम से कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं? 3 ऑर्बिटल इसका, एक इसका और एक इसका, 5, और 1 2 और 3 5 ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इसके, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, तो बना लेते भाई। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p4। ओके, तो 1s, ऑक्सीजन का 1s है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, बना लिया। AO लिखा है मतलब एटॉमिक
ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटम का। अच्छा भाई 1s से तो ज़्यादा एनर्जी 2s की होगी, तो 2s को थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ये है 2s, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा एनर्जी तो 2p की होगी, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, इसको भी बना लेते हैं। 2p, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। तो ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, हमने लिखा भी है 1s2 2s2 2p, 1s2 2s2 2p4, ये तो हमने लिखा है। एक और एटम होगा ऑक्सीजन का, उसके पास भी 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 2s में देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1s contains 2 electron, 2s contain 2 electron. This is the atomic orbital of another oxygen. Okay. As in hydrogen, you saw that this and this atomic orbital combine to form 2 molecular orbital, that is sigma 1s and sigma star 1s. This is bonding, this is anti-bonding. This also combine to form sigma 2s and sigma star 2s. इसको थोड़ा नीचे बनाया है मैंने, थोड़ा इसको ऊपर कर दूं ताकि 3 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकें। ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये 2p और 2p ऑर्बिटल से कॉम्बिनेशन से 2p ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से 6 ऑर्बिटल बने हैं। इनका नाम है सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py एंड पाई स्टार 2px, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल से जितना ये लोअर होगा इसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही, उससे ज़्यादा ही हायर होगा, ठीक है। तो ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया O2 का, ये बीच वाला। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल, जब तक एटम था तब तक ये ऑर्बिटल थे। तो O2 के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, सिग्मा नहीं, पाई 2px, और उसी के बराबर एनर्जी होगी। देखिए दोनों एक बराबर बनाया गया है। अब आप कहोगे दोनों की एनर्जी बराबर क्यों आप कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं कि ये तो इन द प्लेन है, जो दोनों न्यूक्लियाई के प्लेन में ये ऑर्बिटल है, उसमें ओवरलैपिंग एंड ऑन ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी या एडिशन ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी एनर्जी काफ़ी लोअर डाउन हो जाएगी। ये लेटरली प्लेस्ड हैं। अगर दो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर एक्सिस ये है तो इसके ये लेटरली प्लेस्ड हैं, तो इनमें एक्सटेंट, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कम होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कम होगी, इससे कम ज़्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इन दोनों की एनर्जी बराबर है, यानी दोनों डीजनरेट हैं, पाई 2px और पाई 2py। देन उसका एंटी बॉन्डिंग पाई 2px एंड पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz। ये टोटल सबसे कम एनर्जी ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एंड देन दिस, देन दिस, देन दिस एंड देन दिस। तो लोअर एनर्जी molecular orbital, this is the molecular orbital, this is the atomic orbital. This orbital
formed by the atomic orbital, linear combination of atomic orbital, this two molecular orbital form. So O2 की बात करेंगे तो हम इस तरह उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. अगर एटम की बात करेंगे, एलिमेंट के एटम की बात करेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिखेंगे. तो कभी भी मॉलिकुलर लेवल एनर्जी डायग्राम अगर बनाने के लिए आए या उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखने के आए मॉलिक्यूल का, तो आप इस तरह लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s एंड सो ऑन. अब दो चार इलेक्ट्रॉन हैं. सपोज देयर इज ए 4 इलेक्ट्रॉन. सो ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन, दिस फर्स्ट fill in the sigma 1s, then sigma star 2s. There is also 4 electron. This is the sigma 2s, 2 electron, and in the anti-bonding sigma star 2s contains 2 electron. There is a 4 electron in the 2p of each. I am saying each atom. So 4 and 4, 8. There is a 2 electron. Then filling of electron in this singly occupied, then pairing occur. There is a 2, 4, 4, 4, 8 and 8, 16 electron. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14. Then singly occupied. Let's calculate the bond order. The bond order is number of bonding electron, that is 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 and 1 and 1. Number of bonding electron, this is bonding, this is bonding, this is bonding. These 4 electrons belong to the bonding, pi bonding. So 2 plus 2 plus 2 and plus 4, 6 plus 4, there is a 10 bonding electron. Minus anti-bonding 2, 2, 4, 4, 2, 6. There is 6 and divided by 2. Bonding electron minus anti-bonding divided by 2, that is 4 by 2, that is 2 bond. It means double bond between oxygen and oxygen. There is a double bond between oxygen and oxygen. So we can easily predict the bond order. Bond order is 2, means there is a double bond. One bond is sigma, another is pi. If you see the molecular orbital energy level diagram for diatomic homonuclear molecules such as O2, F2, etc., the 1s and 1s of 2 atomic orbital combine to form sigma 1s and sigma star 1s. Sigma 1s bonding and sigma star 1s is anti-bonding. The 2s and 2s atomic orbital combine to form sigma 2s and sigma star 2s. Then 3 orbital of each atom of 2p combine to the 3 orbital of another atom to form 6 molecular orbital. The first is sigma 2pz. The next is sigma 2px and sigma 2py. These are of same energy. Then sigma star 2px and sigma star 2py, that is anti-bonding molecular orbital, both have same energy. Then the sigma 2pz, sigma star 2pz, that is anti-bonding molecular orbital. The electron progressively filled in these molecular orbital means the electron first goes in sigma 1s, then sigma star 1s, then sigma 2s, then sigma star 2s, then sigma 2pz. Then there are 2 molecular orbital that filling of electron is according to the Hund's rule. Both the molecular orbital are singly occupied, then pairing occur. I am talking about the pi 2px and pi 2py, which is responsible for the pi bond formation. First one electron enter in these 2 molecular orbital, then pairing occur. Then afterward the pi star 2px and pi star 2py singly occupied, then pairing occur, and lastly sigma star 2pz filled. This is according to Abba rule and Hund's rule. First question is, how many electron present in O2 plus ion?
So there is a 16 electron, 1 electron lost. So there is a 15 electron. We have to fill 15 electron. So 1s2, 2s2, 2p6, there is a 8 electron, 10, 11, 12, 13, 14, and in anti-bonding there is a 1 electron. So there is 10 bonding electron and there is 5 anti-bonding electron in O2 plus. There is a total 15 electron. So the bond order is 10 minus 5 by 2, that is 5 by 2, 2.5. It means it's great. The bond order is higher than the O2. So the bond order is 2.5. Let's talk about the O2 minus. O2 minus contains 8 oxygen, contains 8 electron, another oxygen contains an 8 electron, and 1 electron come from outside, that is 17 electron in O2 minus. So let's fill. This contain one at oxygen contains 8 electron, another is also 8, and 1 electron come from the outside. This is I mentioned here. So there is this extra electron I am placing here. So anti-bonding contains 7 electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So bonding electron does not changes. Anti-bonding in O2 minus I am talking about. There is 7 electron. So 7 minus 10 minus 7, that is 3. 3 by 2 means 1.5 bond. So in O2 minus there is 1.5 bond. It's not double bond, it's not single bond, it's in between the double and single bond. So bond order is 1.5. Then let's talk about the O2 2 minus. There is 2 electron, from the extra 2 electron, the electron now become 18. Then this extra electron represented by the black color. This placed here. Bond order, again 1 electron increase in the anti-bonding electron become 8. Then this is the 2 by 2 and the bond order is 1. So O2 minus minus has bond order 1. Okay. What is the relation between bond order and stability? Greater the bond, greater the stability. Bond order is directly proportional to stability. तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा? मैंने यही से शुरू किया था कि सबसे स्टेबल कौन सा होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा. बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होता है. यानी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. सबसे स्मॉलर बॉन्ड कौन सा होगा? दिस वन. सबसे स्टेबल कौन सा होगा? दिस वन, O2 प्लस. सबसे स्मॉलर बॉन्ड लेंथ कौन सा होगा? O2 प्लस. सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा? ऑब्वियसली O2 माइनस माइनस. ठीक है. सबसे लॉन्ग बॉन्ड लेंथ का सबसे बड़ा हो वो कौन सा होगा? O2 माइनस माइनस. तो बहुत सारे सवाल. एक सवाल और भी है, मैंने पूछा था आपको स्टार्टिंग में कि विच वन इज पैरामैग्नेटिक अमॉन्ग द फॉलोइंग. वो भी जवाब यहीं पे मिल जाएगा आपको. दिस ऑक्सीजन कंटेन्स 1s2, 2s2, 2p4. दिस O2 कंटेन्स sigma 1s2, sigma star 1s2. There is 16 electron in the O2. Then sigma 2s2, sigma star 2s2, then sigma 2pz2,
then pi 2px2, pi 2py2, this are degenerate. These two molecular orbital are degenerate and involve in formation of pi bonding. अच्छा, जैसे दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी दो पाई बॉन्ड बने हैं, लेकिन बाद वाले एंटी बॉन्डिंग में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल पाई बॉन्ड कंसिडर किया जाएगा, एक को वो डिस्टेबलाइज कर देगा. देन पाई स्टार 2px1, वन इलेक्ट्रॉन, एंड पाई स्टार 2py1 इलेक्ट्रॉन. ये दोनों एनर्जी में इक्वल होंगे. अब आप कहोगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं चले जाते? भाई दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, तो हुंड्स रूल कहता है पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे तब पेयरिंग होगी. इसीलिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि N2O2 Cl2H2 में कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, तो सबके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम देखें, या इसी का एनर्जी लेवल डायग्राम देखें. दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग 2px और 2py में है, तो ऑक्सीजन ही पैरामैग्नेटिक होना चाहिए. और एक्सपेरिमेंटली ये पाया भी गया कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है. एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट डाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक. नाइट्रोजन या इससे छोटे जो मॉलिक्यूल होंगे डायटॉमिक, जैसे C2, B2, N2, तो नाइट्रोजन या छोटे डायटॉमिक मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम और डाई ऑक्सीजन या उससे ऊपर F2 यानी F2O2 के एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या अंतर है, इसको भी हम समझेंगे. तो अगर और कोई अंतर नहीं होता, केवल p ऑर्बिटल में पहले इसकी बात कर लेते हैं. पहले अगर p ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है जो कि 2px है, नाइट्रोजन B2 और C2 या उससे छोटे केस की बात कर रहे हैं, उससे छोटे एटम की बात कर रहे हैं, तो सिग्मा 2pz नीचे होना चाहिए, 2pz नीचे होना चाहिए. उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, और फिर उसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px. ये क्रम होना चाहिए जो कि ऑक्सीजन या उससे बड़े एटम में पाया जाता है. तो इसमें क्या अलग होता है, इसके नीचे 2pz, सिग्मा 2pz के नीचे सिग्मा स्टार 2px है, सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. चूंकि नाइट्रोजन B2 और C2 का साइज छोटा है, तो ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं वो काफ़ी पास होते हैं, तो इनके बीच रिपल्सन शुरू हो जाता है. इससे इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इनके बीच रिपल्सन हो जाता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है. और कितनी बढ़ जाती है? इससे ज़्यादा हो जाती है, इसकी एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है. तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, हम पहले बनाएंगे पाई 2px और पाई 2py, और फिर बनाएंगे सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, पाई 2px, दिस इज पाई 2py. तो क्रम देखिए क्या चेंज हो जा रहा है. हमारे पास है सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz होना चाहिए, जो कि होता भी है इसमें. फिर पाई 2px, पाई 2py सेम एनर्जी के, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py सेम एनर्जी के, और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz. ये इनके और इनके लिए तो सही है. लेकिन अगर हम नाइट्रोजन का केस देख रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है वो इनके लिए सही है, F2 और O2 के लिए, इनके लिए हम बात कर रहे हैं. ये तो सब सेम होगा, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s,
फिर सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s। ये यहाँ नहीं होगा क्योंकि छोटा एटम होने से इनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसकी एनर्जी थोड़ी इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो हम फिर पाई 2px, पाई 2py, देन सिग्मा 2pz। एक ही को चेंज करेंगे नहीं कि ये वाला अंदर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिपल्सन की वजह से इनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ऐसा बताते हैं। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py बराबर एनर्जी के, एंड देन सिग्मा जहाँ है वहीं, सिग्मा स्टार 2pz जहाँ है वहीं पे। ऐसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, और ये N2 या इससे छोटे एटम के लिए है। अगर आप मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम देखें, डाई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, जैसा कि नाइट्रोजन C2 एंड B2, यानी नाइट्रोजन और उससे छोटे जो एटम हैं उनके जो मॉलिक्यूल बनेंगे, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तभी बनते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं। तो उस बीच में जो सर्कल बनाए गए हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों साइड में जो गोले बनाए गए हैं, जो सर्कल बनाए गए हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल को को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1s और 1s दो एटॉमिक ऑर्बिटल दो एटम के कंबाइन कर रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेंटर में बन रहा है। पहला है सिग्मा 1s और दूसरा है सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर इलेक्ट्रॉन प्लेस होता है सिग्मा 1s में तो वो स्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को, अगर इलेक्ट्रॉन जाता है सिग्मा स्टार 1s में तो वो डिस्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को। इसी तरह 2s कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 2s की एनर्जी कम है एटॉमिक ऑर्बिटल से, सिग्मा स्टार 2s जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है एटॉमिक ऑर्बिटल से। अगर इलेक्ट्रॉन प्लेस होता है 2s सिग्मा 2s में तो स्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को, और सिग्मा स्टार 2s में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो डिस्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को। इसी तरह 3 ऑर्बिटल ऑफ 2p सबसेल ऑफ ईच एटम कंबाइन टू फॉर्म 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, that is pi 2px, pi 2py. These are responsible for the pi bond formation in the molecule, and sigma 2pz that is responsible for the sigma bond. This pi 2px and pi 2py are of same energy, means these two molecular orbital have same energy. Then anti-bonding molecular orbital, 3 anti-bonding, pi star 2px and pi star 2py. These two are anti-bonding molecular orbital, that and sigma star 2pz that is anti-bonding molecular orbital. The filling of electron is as per Ahbar rule and Hund's rule, means the lower energy molecular orbital filled first, and then higher energy molecular orbital progressively filled. And if the two molecular orbital are of same energy, then there is a filling of electron singly occupied in two molecular orbital, then pairing occur. सारे molecular orbital के energy level अगर हम एनर्जीज़ को कंपेयर करें तो सबसे कम एनर्जी है सिग्मा 1s का, उससे ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 1s का, उससे ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा 2s का, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 2s का। पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर है। देन उससे ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा 2pz का, उससे ज़्यादा एनर्जी है पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। ये क्रम है एनर्जी का। तो N2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर देखना है कितना होगा, नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, एक एटम के पास, दूसरे एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में एंटी बॉन्डिंग में भी 2। अब आप कहोगे एंटी बॉन्डिंग में क्यों भरे जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग इससे तो कम एनर्जेटिक है ही। देन 2 8 लो, ये बॉन्ड ऑर्डर अगर कैलकुलेट करिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, 2 to 4 4 6 to 8 10,
10 electron minus anti bonding, that is 4 divided by 2, 6 by 2 divided 6 divided by 2, that is 3. So there is a triple bond between nitrogen. Let's talk about N2 plus. There is a 13 electron only, so remove 1 electron from the last, this one. So the bond order for N2 plus is, there is a 9 electron minus 4 by 2, that is 5 by 2, 2.5. So if you compare this N2 with the N2 plus, which one has higher bond order? N2. 3. Which one is more stable? N2. Higher the bond order, higher the stability. Which one is paramagnetic? This contains 1 electron. The N2 contains no electron in sigma 2pz. मतलब there is a 2 electron in the sigma 2pz. So all electrons are paired. So N2 is diamagnetic. In reality, it is found that N2 is diamagnetic, but N2 plus is paramagnetic. Okay. So I tried to answer some questions. What were the question? Which one is more stable species? Which has highest bond order? Which has highest bond? Which has highest bond length? Okay. Which has highest bond dissociation enthalpy? अब अगर आप कंसीडर करें कि वैलेंस बॉन्ड थियरी को, तो आप ये नहीं बता सकते कि O2 पैरामैग्नेटिक होता है। उसमें तो हमने ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखाई और हमने कहा कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो वो ऑक्सीजन रियलिटी में पैरामैग्नेटिक क्यों है? तो उसका एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से मिलता है। तो कुछ और मॉलिक्यूल हैं जैसे B2, C2, इस पे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी अप्लाई करिए, ठीक है। BE2 फॉर्म होगा कि नहीं होगा? वैसे तो मैं आपको बता दूं कि BE और BE के बीच जो बॉन्ड पाया गया है रिसेंटली, मैं कह रहा हूं ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 0.09 किलो जूल पर मोल पाया गया है, ठीक है। रिसेंटली ये पाया गया है, पहले ये, ठीक है। तो पहले ये माना जाता था BE2 नहीं पॉसिबल है। आप देखेंगे, आप जब इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करके जब देखेंगे क्यों नहीं पॉसिबल है, आप बताएंगे कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर हैं। तो जितना ये स्टेबलाइज कर रहा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसीलिए BE2 पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको अप्लाई करिए B2 C2, आपके लिए ये वर्क रहेगा। C2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम आप बनाइए, ठीक है। BE2 के लिए, B2 के लिए, और इनके बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और ये भी प्रेडिक्ट करिए ये पैरामैग्नेटिक है कि नहीं। और फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।